ہم پر بٹھائیں نا, آپ سہیل احمد کو بٹھائیں, عرفان کھوسٹ کو بٹھائیں, ایسے سینئر فنکار جو گھروں پر بیٹھے ہیں, گورنمنٹ ان کو لے کر مانیٹرنگ کے میدان میں ہے, جو ہماری تربیت بھی کریں, ہمارے ڈرامے کو بھی بہتر کریں, مانیٹرنگ بھی کریں. اس کے جو مرضی تے اسی کر ہی نہیں سکتے. اننے ادارے پولیس ڈپارٹمنٹ سانو مانیٹر کر رہا ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ سانو مانیٹر کر رہا ہے, پنجاب آرٹس کونسل سانو مانیٹر کر رہی ہے, ڈی سی او ڈپارٹمنٹ سانو مانیٹر کر رہا ہے. تسی دسو اسی جو مرضی کر کتوں سکنے ہیں. تو نیا ڈرامہ ایکٹ آیا ہے, اگر تو وہ ڈراموں کی بہتری کے لیے ہے, اگر وہ ڈراموں کو سہولت دینے کے لیے ہے, اور اگر وہ ڈراموں کی پروموشن کے لیے ہے, ڈرامے کو صاف کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے ہماری ایسوسیشن اس ایکٹ کا ساتھ دے. پنجاب اور خصوصاً لاہور کے فنکار, تھیٹر اور تھیٹر سے وابستہ لوگ, پروڈیوسرز کافی مشکلات کا شکار تھے. ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے, فنکاروں کی داد رسی کے لیے اور تھیٹر کی بہتری کے لیے ایک ایسوسیشن آج سے کچھ ماہ پہلے وجود میں لائی گئی, جس ایسوسیشن کا نام رکھا گیا پنجاب تھیٹر پروڈیوسر آرٹسٹ ویلفیئر ایسوسیشن. اور اس ایسوسیشن کے لاہور ڈویژن کی باڈی تشکیل دی گئی, جس کے چیئرمین ناز تھیٹر کے آنر اور پروڈیوسر حکیم ملک داؤد صاحب کو بنایا گیا, اور اس کے صدر کے منصب کے لیے ہمارے نامور پروڈیوسر, بہت سینئر پروڈیوسر ہیں, 25-30 سال سے تھیٹر کی دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور ان کے کریڈٹ پر سب دوست جانتے ہیں, ڈرامہ دیکھنے والے جانتے ہیں, میڈیا جانتا ہے کہ ان کے کریڈٹ پر یادگار ترین سٹیج ڈرامے جو ہے وہ یہاں تھیٹر میں کھیلے گئے ہیں. اور جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے مجھ ناچیز کو منتخب کیا گیا. ہماری ایسوسیشن نے ایسوسیشن کے وجود میں آتے ہی اپنے کام کا آغاز کر دیا, اور یہ ایسوسیشن کی ضرورت اس وقت پڑی جب تمام تھیٹروں کو بند کر دیا گیا. تھیٹروں پر فحاشی کا الزام تھا, بے قاعدگیوں کا الزام تھا, اور اس کے بعد سینکڑوں لوگ بے روزگار ہوئے. ان کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے اور تھیٹر ڈراموں کو بہتر کرنے کے لیے اس ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. حکومت وقت سے درخواستیں کی گئیں, میڈیا کے ذریعے بھی, کہ ہمارے لیے قواعد و ضوابط جو بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں, سینکڑوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بند نہ کروائیں. تو اس سلسلے میں ایسوسیشن نے ہائی کورٹ کا رخ کیا, اور اس وقت ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق تھیٹرز کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. اور اس کے اگینسٹ ہم بڑے مشکور ہیں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نقوی صاحب کے, کہ انہوں نے بھی فنکاروں سے محبت کرتے ہوئے, ہمدردی کرتے ہوئے, انہوں نے بھی تمام پنجاب کے تھیٹرز کھولنے کے احکامات جاری کر دیے, اور اس میں تمام تر گزارشات جو ہیں وہ پنجاب تھیٹر آرٹسٹ پروڈیوسر ویلفیئر ایسوسیشن کی تھی, جن پر انہوں نے نظر ثانی فرمائی, مہربانی فرمائی. اس کے بعد پیچھے کئی سال تک, 2-3 سالوں میں کرونا نے ہمیں ڈسٹرب کیے رکھا, اور اس کا ڈائریکٹ اثر جہاں دنیا کے ہر شعبے پر پڑا, تھیٹرز کے شعبے پر بھی بہت اثر پڑا تھا, جس وجہ سے تھیٹر کا بزنس جو ہے وہ بڑا ڈیڈ ہو گیا, اور ڈرامے جو ہے وہ اپنا بجٹ پورا نہیں کر رہے تھے. اس دوران ہم سے ہمدردی کرنے کی بجائے ہماری اسکرپٹ اسکروٹنی فیس جو ہے وہ 15,000 سے 35,000 روپے کر دی گئی تھی, جو کہ تھیٹر پروڈیوسرز کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی. اور خصوصاً لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر جو شہر ہیں, چھوٹے چھوٹے شہر جہاں چھوٹے چھوٹے تھیٹرز ہیں,
वहाँ पर टिकट रेट्स भी बहुत कम है और प्रोडक्शंस भी बड़ी छोटी होती हैं। वहाँ 35,000 रुपये अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसके अगेंस्ट भी हमने अपनी एसोसिएशन की मीटिंग बुलाकर हाई कोर्ट जाने का फ़ैसला किया और बिलाखिर हाई कोर्ट ने हमारी दाद रसी की है और फ़ीस जो है वो 35,000 रुपये ख़त्म करके दोबारा 15,000 रुपये का हुक्म सादर फरमाया है। उसके लिए हम बड़े मशकूर हैं। इसी हवाले से आज सबसे पहले हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब हकीम मलिक दाऊद साहब जो है वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुअज़्ज़ज़ अदालत के इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने फ़नकारों की, प्रोड्यूसरों की और थिएटर से वाबस्ता जितने भी लोग हैं सब की दाद रसी करके 35 से दोबारा उन्होंने 15,000 कर दिया। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है क्योंकि पूरा पंजाब इससे मुस्तफ़ीद होगा। प्रोड्यूसरों ने जब से फ़ीस बढ़ी है तो कई जो कमज़ोर प्रोड्यूसर थे फ़ीस बढ़ने के सबब उन्होंने ड्रामे लगाने बंद कर दिए और वही पुराने ड्रामे, चूँकि फ़ीस ज़्यादा थी इसलिए ड्रामा चेंज करने में दिक्कत होती थी। हर दफ़ा वो 35,000 रुपया नहीं जमा करा सकते थे, इसलिए आवाम को मयारी ड्रामे पेश नहीं किए जाते थे। ये जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दाद रसी करके 35 से दोबारा 15 कर दिया है, इंशाल्लाह ये करने से पूरे पंजाब में आवाम को इंटरटेनमेंट बहुत अच्छी तरह मिलेगी और प्रोड्यूसर दोबारा इस पेशे से वाबस्ता होंगे जो चले गए थे। ये जो लाहौर में एसोसिएशन बनी है, कोई किसी भाई को तंगी महसूस हो तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे यूसुफ भाई हैं जिन्हें एक ज़माना जानता है और अपने पेशे के ये बड़े नामवर लोग हैं और सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं, प्रोड्यूसर भी और ये जो आर्टिस्ट, ये जो राइटर डायरेक्टर हैं, ऐसे राइटर डायरेक्टर कहाँ आजकल हैं। और अल्लाह के फजल से जहाँ डॉक्टर साहब ड्रामा लगता है इनका नाम एक सनद समझा जाता है कि वहाँ हम चलें जहाँ डॉक्टर अजमल साहब डायरेक्शन दे रहे हैं और जहाँ प्रोड्यूसर यूसुफ साहब हैं। तो इनकी वजह से आवाम को भी बड़ा अच्छे ड्रामे देखने को मिलेंगे और पूरे पंजाब में लोग दुआएं दे रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालत को भी दे रहे हैं और मुअज़्ज़ज़ अदालत के साथ ये सारी हमारी जो बनी है एसोसिएशन को भी दे रहे हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी किसी भाई को कोई तंगी हो, कोई परेशानी हो तो हम उनका पूरी तरह एसोसिएशन पूरे पंजाब में साथ देगी। नहीं, एक तो वो ड्रामे नहीं हुए, उन्होंने एनओसी नहीं दिया हमें, ठीक है ना, एक सेंसर नहीं देखी उन्होंने, ठीक है कि नहीं, स्क्रिप्ट स्कूटनी फ़ीस भी नहीं जमा करवाई। हमने 15,000 जमा कराया, वो कहते हमने नहीं लेनी, क्योंकि वो जो राइटर था जो उन्होंने पढ़ने भेजना था स्क्रिप्ट वो तो जाता ही नहीं था, तो वो कैसे लेंगे, क्योंकि जो आर्डर है हाई कोर्ट का उसके 29/4 तक ये स्टे है, तब तक हमने 15,000 ही जमा कराना है। गुजारिश है मैं थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं तो अर्ज कर देना थोड़े मामलात क्लियर हो जाएंगे। मेरी गल 35,000 रुपये फीस के अगेंस्ट हाई कोर्ट दे विच रिट की गई कि ये बहुत ज़्यादा है, मेहरबानी करो साडी साबका फीस जी बहाल करो। अदालत ने नैक्सट एक डेट दी कि उस डेट नू मुतलका इदारे आके जवाब देन और उस डेट तक साबका फीस जी है ना 15,000 रुपये ही दी जाए। असी वो 15,000 रुपये तो आर्डर लैके अपने मुतलका डिपार्टमेंट को गए कि जी जदों तक यदा फैसला नहीं आता, अदालत का हुक्म है तुसी 15,000 रुपये फीस लवो जी। सर मैं वही अर्ज करन लगा वा सर जेड़े थिएटरां ने फीस जमा कराई है ना वो रोए ने आके एसोसिएशन दे अगे
ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 15 ਕਰਵਾਉਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 15 15 ਕਰਵਾਉਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ नहीं सर, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। 29/4 ਤੱਕ 15,000 रुपए फीस जमा करे, जो मर्जी एक अलग चीज़ है, जो मर्जी तो ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਇਦਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਸੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਮੁਕਦਮ ਕਵਾਂਗੇ ड्रामे सर। जो नया ड्रामा एक्ट आया है, अगर तो वो ड्रामों की बेहतरी के लिए है, अगर वो ड्रामों को सहूलत देने के लिए है, और अगर वो ड्रामों की प्रमोशन के लिए है, ड्रामे को साफ करने के लिए, तो सबसे पहले हमारी एसोसिएशन उस एक्ट का साथ देगी। और अगर वो कोई उसमें कोई ऐसी शिक है कि ड्रामे चालीन मतलब है कि आटा गुन दी हिलदी क्यों है, कोई ड्रामे को बंद करने के लिए कोई मतलब है कोई ऐसा अमल, तो फिर हम ज़रूर एहतजाज करेंगे, ये हमारा हक है। ठीक है जी, वेलकम जी। अगर मतलब है कि मीडिया ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 15,000 रुपए ਦੇ पाबंदा, हाई कोर्ट ने भी 29 तारीख तक ये रिलीफ दिया है। हम अपने होम डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करेंगे, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पंजाब आर्ट्स कौंसिल से भी गुजारिश करते हैं कि अगर ये 35,000 रुपये हमारे लिए तकलीफ़ दे ना होता तो हम आपका दरवाज़ा ना खटखटाते, इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा ना खटखटाते। जिन लोगों ने इस दौरान मजबूरी के तहत फ़ीस दी है उन्होंने मुसलसल नुकसान उठाया है, और उस नुकसान की बदौलत उनमें से काफ़ी लोग जो है इस शोबे को खैर बात कहने का प्रोग्राम बना चुके हैं। इस तरीके से आर्ट्स कौंसिल तो हमेशा ड्रामे को प्रमोट करती है, और ड्रामे की तरक्की के लिए, तरवीह के लिए कौंसल असल हमारा इदारा जो है वो आर्ट्स कौंसिल है। ड्रामों को मॉनिटर करना, ड्रामे की बेहतरी के लिए सोचना, ड्रामा से वाबस्ता फ़नकारों को जो है प्रमोट करना और उनको उनका हक देना, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब आर्ट्स कौंसिल की है, और हम पंजाब आर्ट्स कौंसिल का एहतराम करते हैं। मगर पंजाब आर्ट्स कौंसिल हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। हाँ, ड्रामे को बेहतर करने के लिए ये सारे इदारे साड़ी संगी ते आके नौ रख लेना, असी हाजिर हाँ। 18 स्केल के जो ऑफिसर हमें मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे वो सारा आँखों पर, मगर उनमें हमारा तबका भी मौजूद होना चाहिए, हमारे तबके की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। हमारा तबका इस काम को जानता है, हमारे सीनियर्स, वो हमें आकर बता सकते हैं कि बेटा इस तरह नहीं, इस तरह। कोई आकर हमें ये बताएगा ना कि आप ये गलत कह रहे हैं, वो ये नहीं बता सकता कि इसको सही कैसे करना है। हमें वो चाहिए जो हमें सही का भी बताए, इसको सही इस तरह करना है। जी बहुत शुक्रिया। तो हम सारा को वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, सारा को